أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 66 سے لے کر 73 جو ہے اس کو پڑھیں گے، اور ہمارا طریقہ وہی رہے گا کہ ہم اس کے ورڈز میننگ اور پھر اس کے بعد دیکھیں گے اس میں اردو کے الفاظ کون سے ہیں، اور پھر اس کے بعد کون سے الفاظ ایسے تھے جو پچھلے 2 لیکچرز میں رپیٹ ہو چکے تھے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فا کے معنی پس ہوتا ہے، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اور جا آلہ، جا آلہ کہتے ہیں بنانا۔ نا، نون کے معنی پہلے بھی کہا تھا ہم ہوتا ہے، اور پھر ہا اس کا، اس کو۔ فا جا ال نہا، تو ہم نے ان کو بنا دیا۔ نکالن، اچھا جو نکال ہوتا ہے اس کا مطلب عبرت ہوتا ہے، باعث سے عبرت، کہ ہم نے ان کو عبرت بنا دیا۔ بینا، اردو میں استعمال کرتے ہیں لفظ بین بین، جس کا مطلب ہوتا ہے درمیان۔ یدئی ہے، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، چونکہ ہاتھ سامنے ہوتا ہے اس لیے یدئی ہے ان کے سامنے۔ وا اور ما جو، خلف، خلف کہتے ہیں پیچھے کو، ہا اس کے یا ان کے، اور جو ان کے پیچھے تھے۔ وا اور موعظاتن، موعظہ کہتے ہیں نصیحت کو، ایڈوائز کو۔ للمتقین، یہاں دیکھیں لام ہے، لام ہوتا ہے کے لیے، متقین متقی لوگ، پرہیزگار لوگ۔ فجعلناہا نکالن، ہم نے ان کو عبرت بنا دیا۔ لیما بینا یدیہا، جو ان کے سامنے لوگ یعنی اس دور میں لوگ موجود تھے۔ وما خلفہا، اور جو اس کے بعد آنے والے تھے۔ وموعظۃ للمتقین، اور متقی لوگوں کے لیے اسے نصیحت بنا دیا۔ اور یہ بیسیکلی وہی پیچھے والی بات چل رہی ہے کہ جب انہوں نے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے وہ باز نہیں آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھٹکارے ہوئے بندر بنا دیا۔ اور یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو، جو لوگ اس دور میں، اس زمانے میں لوگ رہتے تھے اور جو لوگ ان کے بعد آنے تھے، ان سب کے لیے عبرت بنا دیا، تاکہ لوگوں کو اس بات سے نصیحت ملے، عبرت ہو جائے کہ اللہ کی نافرمانی کی سزا کیا مل سکتی ہے، اور اس بات کو متقی لوگوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ وا اور، وا بہت دفعہ آ چکا ہے۔ از کہتے ہیں جب، کالا کہنا، یہ بھی بہت دفعہ آ چکا ہے۔ موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لے قوم ہی، دیکھیں لام، قوم اور ہی، 3 لفظ ہو گئے، لام کے لیے یا کو، قوم اردو کا لفظ ہے، ہی اس کی یا اپنی، لے قوم ہی اپنی قوم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کہا، انا، انا کے معنی ہوتا ہے بے شک، اللہ اللہ، یا مورکم، دیکھیں یہاں پہ اگر یہ کو اٹھائیں تو امر ہو گیا نا، اور امر کا مطلب آپ سب سمجھتے ہیں حکم، اور کم کا مطلب تمہیں ہوتا ہے، اور چونکہ اس سے پہلے یہ آ چکا ہے تو یہ کا مطلب وہ کیا، یا مورکم، وہ تمہیں حکم دیتا ہے، ان، کیا کرو، ان کے، تذبحو، اچھا یہاں سے اب تے کو ہٹائیں تو دیکھیں ذبح بن گیا نا، واو کو بھی ہٹا دیں تو زیبہ، تو ذبح ہو گیا نا، تو تذبحو، تم ذبح کرو، تے تم کی وجہ سے، اور آگے واو الف ہے جمع کا صیغہ کے لیے کہ تم ذبح کرو۔ باقراتن، بقرہ کسے کہتے ہیں، گائے کو، یہاں سے وہ لفظ صورت کا جو ہے نام لیا گیا ہے۔ تالو کہنا، وہ جمع کا صیغہ آ گیا چونکہ آگے واو الف آ گیا، انہوں نے کہا
अतत्ताखिजुना, आ क्या, तत्ताखिजुना तुम बनाते हो, तत्ताखिजु पकड़ना करना, तुम पकड़ते हो, तुम करते हो, हुजुवन, हुजुवा कहते हैं मजाक, कि तुम मजाक करते हो। काला कहा, आऊजो, आऊजो कहते हैं पनाह मांगना, मैं पनाह मांगता हूँ, बिल्लाह बेसाथ अल्लाह, अल्लाह के, अन के, अकूना, अकूना में ना होना, कि हो जाऊं मैं, मिन से, जाहिलीन जाहिलों में से। वाइस काला मूसा ले कौम ही, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, इन अल्लाह या मुरकुम, बेशक अल्लाह ताला तुमको हुक्म देता है, अंतजबहु बकरतन, कि वो गाय को ज़िबा करे। कालू, तो उन्होंने कहा, अतत्तखिज़ुना हुज़वन, क्या तुम हमारे साथ मजाक करते हो। काला, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आऊज़ु बिल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ, इन अकूना मिनल जाहिलीन, कि मैं जाहिलों में से हो जाऊं। लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है कि तुम गाय को ज़िबा करो, तो वो बोले, क्या तू हमारे साथ मजाक करता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ, अगर मैं ऐसा करूँ तो मैं जाहिलों में से हो जाऊं। सॉरी। अब देखिए, हम यहाँ पे देखें कि उर्दू के अल्फाज कौन से हैं। देखिए, बैन आ गया, मुत्तकीन आ गया, मूसा आ गया, कौम आ गया, अल्लाह आ गया, अमर भी उर्दू में इस्तेमाल कर लेते हैं। ये जिबा देखें, जिबा आ गया, अल्लाह आ गया, और जाहिलीन आ गया। देखें, ये आ गए हमारे पास उर्दू के अल्फाज। अब देखिए, इसके बाद अल्फाज रिपीट कौन से हो रहे हैं। फाजा आला, ये भी रिपीट हुआ, लेमा भी रिपीट हुआ, बैना हुआ, वा और मा भी रिपीट हुआ, वा, फिर इज, काला, मूसा, लिकौम ही, इन्ना, अल्लाह, अन, कालू, काला, बिल्ला, मिन। देखिए, ये अल्फाज वो हैं जो पहले लेक्चर्स में गुजर चुके हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, फिर हम देखेंगे बेसिकली इसमें कहा क्या जा रहा है। कालू, कालू कहना, उन्होंने कहा, उद ओ, उदो कहते हैं पुकारना, निदा करना, पुकारो, ला ना, दो लफ्ज हैं, ला और ना। ला हमारे लिए, ला के लिए, ना हमारे लिए। लना, हमारे लिए पुकारिए, रब्बा, रब को का मैना अपने, तेरे आप अपने लिए यानी हमारे लिए अपने रब को पुकारे। युबय्यन, युबय्यन कहते हैं वाजे करना, क्लियर करना, वाजे करे। लना, देखिए लफ्ज फिर वही पीछे से गुजर चुका है, लाम के लिए, ना हमारे, हमारे लिए वाजे करे। माँ, माँ के मैंने जो भी होता है, माँ, हे या मैंने ये, कि ये क्या है, ये कैसी है। काला कहा, इन्नहु, इन्ना बेशक हु वो, इन्नहु बेशक वो, यकूलो कहता है, कौल से कहना, ये आ गया तो वो। इन्ना हा, इन्ना बेशक हा वो, इन्ना हा बेशक वो, बाकरातुन, बकरा कहते हैं गाय को, पहले लफ्ज गुजर चुका है। ला नहीं, फारिजुन, फारिज कहते हैं बूढ़ी, वा और ला नहीं, बिक्रुन, बिक्र कहते हैं जवान को, कि वो ना बूढ़ी है ना जवान है। अवानुन, अवान कहते हैं दरमियान में, बैना दरमियान, जालिका इसके, ये अवान जवान है, इसके दरमियान। फफअलू, फापस अफलू करना, फफअलू कर लो, मा जो, तो मारून, तो तुम्हें मारून हुक्म दे रहा तो मत से, तो करो जो तुम्हें हुक्म दिया गया। कालू, तो उन्होंने कहा, अद ओलना रब्बा का, कि अपने रब से दुआ कीजिए, ले युबय्यन लना, कि हमारे लिए वाजे करे, माँ है या, कि वो गाय कैसी हो। काला, हजरत मूसा ने कहा,
इन्नहु यकूलु कि अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नहा बाकरातुन के वो जो गाय है, ला फारजुन ना बूढ़ी है, वला बिक्रन और ना छोटी उम्र की है, अवानुन बैन जालिका इनके दरमियान दरमियान की उम्र की है। फफ़अलू मा तुमरून तो जो तुम्हें हुक्म दिया गया है उसे कर डालो। कालू देखे लफ्ज फिर कितनी दफा आ गया, कालू कहा, उद ओ फिर ऊपर लफ्ज आ गया, पुकारो लना ये लफ्ज भी रिपीट हो गया हमारे लिए, रब्बा का रब्बा रब का अपने, ये देखें लफ्ज फिर वही आ गया, युबैयन वाजे करे लना हमारे लिए। अब देखें पूरे ये पांच अल्फाज ऊपर आ चुके हैं। माँ क्या, लोहा लौन कहते हैं रंग, हा उसका कि उसका रंग क्या है, काला कहा, इन्ना बेशक हु वो, ये भी देखें लफ्ज इन्ना हु रिपीट हो चुका है। यकूलू ये लफ्ज भी रिपीट हो गया, वो कहता है, इन्ना हा इन्ना बेशक हा वो बाकरातुन गाय है, सफरा ओ सफर कहते हैं जर्द रंग की, फाके ए कि वाकई हुई है, उसका जो कलर है वो किस किस्म का है कि वो जर्द रंग का है। लौन हा लौन कलर हा उसका कि उसका रंग जर्द रंग का है। तो सुर्रो तो सुर कहते हैं अच्छा लगना, नाजरीन नाजर कहते हैं देखने वालों को अच्छा लगे। कालू तो उन्होंने कहा, अद ओलना रब्बा का कि आप हमारे लिए रब को पुकारिए, युबैय्यिन लना मा लौनहा कि वो बताए उस गाय का रंग कैसा हो। काला कहा, इन्नहु यकूलू कि अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नहा बाकरातुन सफराउ फातिहो कि ये गाय गहरे जर्द रंग की है, लौनहा तो सुर नाजरीन देखने वालों को खूबसूरत लगती है। यहाँ देखिए रब आ गया उर्दू का लफ्ज, फिर वही रब आ गया। यहाँ पे उर्दू के लफ्ज जो हैं वो दो ही आए हैं, लेकिन रिपीट वर्ड देखें कि आप कालुद ओलना रब का युबैय लना, देखिए ये चार अल्फाज आपको अगली लाइन में भी नजर आ रहे हैं। अच्छा माँ और ये है या ये माँ क्या है या ये भी रिपीट हुआ है, काला कहना ये भी रिपीट हुआ है, इन्नहु बेशक वो, यकूलो वो कहता है ये भी रिपीट हुआ है, इन्नहा आगे देखिए रिपीट होगा, ये वो, बकरातुन पहले लफ्ज गुजर चुका है गाय, ला नहीं ये नया लफ्ज आ जाएगा आपके लिए फारिज वाला कि बूढ़ी वाला, और ना बिक्र यानी कि वो छोटी उम्र की, आवान दरमियानी उम्र की, बैनजाली का इसके दरमियान। अच्छा उसके बाद यहाँ पे देखें कि हमारे पास कोई लफ्ज और रिपीट कौन सा हो रहा है, लौनहा रिपीट हो गया उसका रंग, काला भी रिपीट हो गया, यकूलु वो कहता है, इन्नहु ये रिपीट हो गया, इन्नहा ये रिपीट हो गया, बकरतुन रिपीट हो गया, और ऊपर देखें लौनहा भी रिपीट हो गया। इस तरह देखें कितने के लफ्ज इसके अंदर रिपीट हो चुके हैं। अब उसके बाद है कालू, देखिए फिर वही लफ्ज आ गया, कालुद उलना रब्बा का युबैय लना, देखिए वो सेम अल्फाज आ रहे हैं माँ तक। कालू कहा, उद ओ पुकार लना हमारे लिए, रब्बा का अपने रब को, युबैयन वाजे करे लना हमारे लिए, माँ क्या है या कि वो कैसी है, कि आप हमारे लिए अपने रब को पुकारिए कि वो बताए कि वो गाय कैसी हो। इन्ना बेशक, बाकारा पीछे लफ्ज गुजर गया, गाय, पेशाबा ये लफ्ज कहते हैं ना जिसमें शुबा पड़ जाता है, ये देखिए शुबा, अगर ते हटा दें तो शुबा पड़ गया शक वाली, अलई ना अला पर ना हम पर, कि हम पर शुबा पड़ गया है, शक पड़ गया है। वाह और इन्ना बेशक हम, दो लफ्ज इन बेशक ना हम, इन अगर शाह शाह चाहना, अल्लाह अल्लाह, ला मुहतदून, मुहतदून किसे कहते हैं, हदायत याफ्ता हदायत वाले। तो क्या कालुद उलना रब्बा का कि आप अपने रब को पुकारिए, युबैय लना कि वो हमारे लिए वाजे कर दे, माहिया कि वो गाय कैसी हो, इन्नल बकरा तशाबहा अलैना क्योंकि हमें शक पड़ गया है गाय के ऊपर, व इन्ना इंशाअल्लाह ला मुहतदून और इसके बाद अगर अल्लाह चाहेगा हम हदायत वाले हो जाएंगे। काला कहना,
इन्नहु बेशक वो, यकूलो कहता है, इन्ना बेशक हा हा, बाकरातुन गाय। देखिए कितने लफ्ज रिपीट बार बार हो रहे हैं। ला नहीं, जुलूल, जुलूलन, जुलूल कहते हैं मेहनत करने वाली। तोसीर, तोसीर कहता है फाड़ना। अल अर्द जमीन, जमीन को फाड़ने वाली, यानी जमीन के ऊपर हल चलाने वाली। वा और ला नहीं, तस्की, तस्की कहते हैं पानी देना। अल हर्स, हर्स कहते हैं खेती को, और ना ही खेती को पानी देने वाली है। मुसल्लमा, मुसल्लमा कहते हैं बिल्कुल साफ सुथरी है। ला नहीं, शयाता, कि उसके ऊपर कोई दाग नहीं है। फिया, इसमें, यहाँ शयाता दाग, फिया इसमें, इसमें कोई दाग नहीं है। कालू, वो बोले, अल आना, अल आना कहता है अब, जेता आना, आ गए, बिल हक, बेसाथ हक हक, अब हम हक पे पहुंच गए। फा ज़बहुहा, वापस अगर देखे जिबा, जिबा करना किसको, हा उसको, तो उन्होंने उसको जिबा किया। वाह और माँ के मैंने नहीं, कादू होना करना, यफअलून, यफअल कहता काम करना, और वो ऐसा करने वाले ना थे। तो क्या कहा कि उन्होंने कहा कि हज़रत मूसा ने कहा कि अल्लाह फरमाता है कि वो गाय एक ऐसी है, ना तो वो मेहनत करती है, ना जमीन पे हल जोतती है, ना खेती को पानी देती है, उसमें कोई ऐब नहीं है, किसी किस्म का कोई निशान नहीं है, दाग नहीं है, बिल्कुल पाक साफ है। वो बोले कि अब हम हक पर पहुंच गए, और उन्होंने उसको ज़िबा कर दिया, और वो ऐसा करने वाले ना थे। यहाँ देखिएगा, रब उर्दू का लफ्ज आ गया, अल्लाह आ गया, ये मुहतदून आप हदायत से ले सकते हैं। अर्ज आ गया जमीन को, हक आ गया उर्दू का लफ्ज, ज़िबा उर्दू का लफ्ज आ गया। अब यहाँ पे देखें कि लफ्ज रिपीट कौन से हो रहे हैं, कालुद उलना रब्बका युबय्यिलना मा हिया। ये पूरी की पूरी लाइन रिपीट हो गई कि उन्होंने कहा कि आप अपने रब को पुकारिए कि हमें बताए कि वो कैसी है गाय। इन्ना लफ्ज रिपीट हो गया, बकरा रिपीट हो गया, गाय। उसके बाद ये शुबा वाला उर्दू में आ गया, अलैना पहले रिपीट हो गया, हम पर। वाह ये रिपीट हो गया, इन्ना बेशक हम, इन शाह, इन शाह तो लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं इंशाअल्लाह, वो वाला। अच्छा उसके बाद आ गया, काला रिपीट हो गया, इन्नहू रिपीट हो गया, यकूलो रिपीट हो गया, बाकरा रिपीट हो गया, ला रिपीट हो गया, अर्ज रिपीट हो गया, वा ला। फिर देखिए ला रिपीट हो गया, फी हा इसमें रिपीट हो गया, कालू, हक, ज़बहू वाला रिपीट हो गया। तो देखिए इतने सारे अल्फाज जो है इसके अंदर रिपीट हो चुके हैं। वाह और इस जब, कत्ल, ये देखे ना कत्ल करना, इसको दो लफ्ज में कर ले, कत्ल और तुम। कत्ल किया तुमने, नफ्स कहते हैं बंदे को, नफ्सन बंदा, ये शख्स को। फद्दरा तुम, फद्दरा कहते हैं डालना, या झगड़ना भी कहते हैं। फद्दरा तुम लड़ने लगे, झगड़ने लगे, फी में हा इस, इसमें फिर तुम लड़ने लगे। वल्ला और अल्लाह, मुखरिजो, देखिए मीम निकाले तो खारिज हो जाता है ना, निकालना, अल्लाह निकालेगा, माँ जो कुन तुम तक तुमून, तक तुम कहते हैं छुपाना। वाइज कतल तुम नफसन, जब तुमने एक बंदे को कत्ल कर दिया, फ़अद्दरातुहुम फीहा, फिर तुम इस पर लड़ने लगे। वल्लाहु मुखरिजुन, अल्लाह निकालेगा, मा कुंतुम तक्तुमून, जो तुम छुपाते थे। वापस कुल कहना ना हम, तो हमने कहा नजरेबू, जरब कहते हैं मारना, हु उसको, उसको मारो, बेबाजे हा, यानी कि उर्दू का लफ्ज करें बाज, बेसाथ हा इसके, तो बाज को मारो, यानी इसके क्या कह सकते हैं कि इसको मारो। कजाली का इस तरह, योहजी, योहजी कहते हैं जिंदा करना। अल्लाह, अल्लाह अल मौत, ये मौत का लफ्ज उर्दू में आ गया। इस तरह अल्लाह मुर्दा को जिंदा करेगा। वाह और यूरी कुम, यूरी कहता है दिखाना, कुम तुम्हें, आयात निशानियां ही अपनी, अपनी निशानियां दिखाएगा। लअल्लकुम, अल्लाह शायद के, अल्लाह होता है शायद के, कुम तुम
ताकिलून ते हटा दो तो अकल बन गया कि तुम अक्ल करो, समझ सको। और जब तुमने एक शख्स को कत्ल कर दिया और फिर लड़ने लगे इस बारे में, तो जो तुम छुपाते थे अल्लाह उसको निकाल देगा। तो हमने कहा कि इसका एक हिस्सा उस बंदे को मारो, यानी गाय का हिस्सा। तो इस तरह अल्लाह मुर्दा को जिंदा करेगा और तुम्हें अपनी निशानियां दिखाएगा ताकि तुम अक्ल करो। अच्छा, ये बेसिकली हुआ क्या कि एक भतीजे ने अपने चचा को कत्ल कर दिया विरासत के लिए, और फिर उसे गांव के बाहर फेंक दिया। और गांव जो वहाँ के बस्ती के लोग थे उन पर इल्ज़ाम लगा दिया कि उन्होंने मेरे चचा को कत्ल कर दिया, लिहाजा मुझे कसास दिया जाए। कौम परेशानी के आलम में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई और आकर अपनी परेशानी बताई। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा कि अल्लाह कहता है कि तुम एक गाय ज़िबह करो। उन्होंने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम कैसी बात कर रहे हो, हम परेशानी के आलम में हैं और आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं कि हम गाय को ज़िबह करें। हम आपके पास आए हैं कि बंदा कत्ल हो गया है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं मजाक नहीं कर रहा, बल्कि अल्लाह ने ऐसा हुक्म दिया है, अगर मैं मजाक करूं तो मैं नादानों में से हो जाऊं। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को तंग करना शुरू कर दिया और कहा कि आप कोहे तूर पर जाए और जाकर अल्लाह ताला से पूछें। क्या पूछें? कि ये बताएं कि वो गाय कैसी हो। गाय तो बहुत सारी होती हैं, अब हम किस गाय को ज़िबा करें? तो मूसा अलैहिस्सलाम गए और आकर बताया कि अल्लाह ने कहा कि वो गाय ना ज़्यादा बूढ़ी हो, ना छोटी उम्र की हो, बल्कि दरमियानी उम्र की हो, अब तुम उसे ज़िबा कर दो। अब फिर उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये तो ठीक है, लेकिन अब हमें क्या पता कि हमने किस रंग की गाय को ज़िबा करना है। तो आप जाइए अल्लाह के पास और उनसे पूछ के बताएं कि गाय का रंग कैसा हो। तो मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तौर पर तशरीफ ले गए और फिर आकर उनको बताया कि अल्लाह ने बताया कि रंग बिल्कुल तेज जर्द कलर का है और देखने वालों को खूबसूरत लगता है। अब फिर उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि देखिए, कि अल्लाह से फिर जाके पूछे कि इस तरह तो गाय में हमें शुबा पड़ गया है कि कौन सी गाय हम ज़िबा करें, तो हमें वो गाय क्लियर करके बता दे ताकि हम जो है फिर उसी गाय को ज़िबा करें। मूसा अलैहिस्सलाम दोबारा गए और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो गाय ऐसी होगी, ना वो खेतों में हल चलाती होगी, ना उसके जरिए पानी दिया जाता होगा खेतों में, उस पर किसी किस्म का दाग नहीं होगा, बिल्कुल साफ सुथरी होगी। तो उन्होंने कहा कि हाँ, अब हम सच बात पर पहुंच गए। अब उन्होंने गाय को तलाश करना शुरू किया और आखिरकार वो गाय मिल गई और बहुत महंगे दामों में वो गाय उन्हें खरीदना पड़ी। अब जब उन्होंने गाय को ज़िबा किया तो उसके बाद उन्होंने, यानी अल्लाह ताला ने कहा कि इस गाय का जो गोश्त का टुकड़ा है तुम उस मुर्दे को मारो। तुमने गोश्त का टुकड़ा मुर्दे को मारा तो मुर्दा उठ के बैठ गया और उसने बताया कि मुझे फलां ने कत्ल किया। तो यहाँ पे यही वो सारी स्टोरी बताई जा रही है कि किस तरह जो है वो गाय को ज़िबा करने का हुक्म दिया गया। बल्कि कहा गया कि अगर वो ऐसा ना कहते, बल्कि वो क्या करते हैं कि अगर किसी भी गाय को ज़िबा कर लेते तो उनका मसला हल हो जाता, लेकिन वो क्वेश्चन करते गए, इसलिए वो मुश्किल का शिकार हो गए। तो ये आज हमारी 73 तक आयात हो चुकी हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है हम इसको देखेंगे। बल्कि मुझे हर दफ़ा सर को भेजना पड़ता है आपका ये लेक्चर का लिंक। अगर आप उसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो ये होगा कि जो लेक्चर इसमें होता जाएगा वो आपके पास जो है पहुंचता जाएगा, आप आराम से उनको सुन लेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।